السلام علیکم اسٹوڈنٹس، خانس اکیڈمی میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ آج ہم 8ویں کلاس کے علم ریاضی میں سبق نمبر 15 رغبہ پڑھنے والے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم تھوڑا سا اعادہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے پچھلی جماعتوں میں جو ہے کیا سیکھا ہے، اور الگ الگ ہم نے جو ہے اشغال کے رغبے جو ہیں ہم نے معلوم کیے ہیں 7ویں جماعت میں۔ امید ہے آپ کو یاد ہوگا، ہے نا؟ اگر نہیں یاد ہے تو ہم آپ کو یاد دلا دیتے ہیں۔ تو ہم نے مربع کے بارے میں پڑھا تھا بچوں، ہے نا؟ مربع تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا، یہ ہے مربع، مان لیجئے اس کا نام ہے، ہم اے بی سی ڈی آپ اس طرح سے بتا رہے ہیں، ہے نا؟ تو مربع کا اگر رقبہ معلوم کرنا ہوتا تھا تو ہم اس کو اس طرح سے بھی لکھتے ہیں کہ مربع کا رقبہ برابر اس کا جو ضلع ہوتا ہے، اس کے ضلع کا مربع ہم کر لیتے تھے تو ہمیں اس مربع کا رقبہ معلوم ہو جاتا تھا۔ اسی طرح سے اگر کوئی مستطیل ہوتا ہے نا، اس طرح سے مان لیجیے مستطیل ہے، اس کا بھی نام اس طرح سے ہم اے بی سی اور ڈی ہم دے دیتے ہیں، تو یہ مستطیل کا رقبہ ہم اس طرح سے معلوم کرتے تھے کہ یہ جو اس کا یہ جو پورشن ہوتا تھا یہ لمبائی ہوتی تھی، اور یہ جو حصہ ہوتا تھا اس کو چوڑائی کے ذریعے بتایا جاتا تھا۔ تو مستطیل کا رقبہ کا ضابطہ کچھ اس طرح سے ہوتا تھا کہ لمبائی کو چوڑائی سے ضرب کر دیا جاتا تو اس کا رقبہ ہمیں جو ہے معلوم ہو جاتا۔ لمبائی کو عموماً ایل کے ذریعے، یعنی لینتھ کہتے ہیں انگلش میں، اس لیے ایل کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے، اور چوڑائی کو انگلش میں بریتھ کہتے ہیں، اس لیے بی سے جو ہے ہم اس کو ظاہر کرتے ہیں، اس لیے ایل ضرب بی لکھا جاتا ہے نا؟ تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مستطیل کا جو رقبہ ہے وہ لمبائی ضرب چوڑائی اس کا فارمولہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مان لیجیے اگر ایک اور شکل ہے، جیسے کہ آپ کے سامنے ایک قامت الزاویہ مثلث ہم اس طرح سے بنا دیتے ہیں، جس میں ایک 90 درجے کا زاویہ ہوتا ہے، مثلث اے بی سی۔ اس کا اگر ہم کو اگر رقبہ معلوم کرنا ہوتا ہے نا، تو ہم ایسا بتائیں گے قائمت الزاویہ مثلث کا رقبہ، مثلث کا رقبہ۔ اس کو لکھنے کے دو طریقے بیٹا، ایریا آف ٹرائنگل اے بی سی ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، ہے نا؟ تو کسی بھی مثلث کا جو رقبہ ہے وہ اس طرح سے 1/2 قاعدہ ضرب ارتفاع۔ تو قاعدہ اگر آپ شکل میں دیکھیں گے قاعدہ اور ارتفاع، ہے نا؟ اس کو آپ کو ضرب کرنا ہوگا۔ تو دیکھو قاعدہ کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے قاعدہ بی سی۔ اگر اس کو گھما کے کھڑا کر دیا جائے مثلث کو، یعنی کچھ اس طرح سے اگر کر دیا جائے، یعنی سی اوپر چلا جائے، ہے نا، اور بی ادھر آ جائے اس طرح سے، اور اے ادھر آ جائے، تو اب قاعدہ اے بی ہو جائے گا۔ تو یہ کیسا ہوتا ہے کہ اے بی اور بی سی جو ہے یہ ایک دوسرے پر عمود ہے، دو عمودی جو ہے ضلع ہیں یہ۔ تو ہم اس کو جس انداز میں دیکھیں گے تو اس انداز میں ہم کو قاعدہ الگ الگ اور ارتفاع الگ الگ نظر آئے گا، ہے نا؟ کیونکہ قائمت الزاویہ مثلث ہے اس کے لیے۔ تو یہاں پر کیسا ہوتا ہے کہ بھائی مثلث کا جو رقبہ ہوتا ہے وہ قاعدہ ضرب ارتفاع، یعنی ہم استعمال تو کریں گے یہ جو رقبے کا فارمولہ ہے، لیکن قائمت الزاویہ مثلث کے لحاظ سے اگر ہم کو رقبہ معلوم کرنا ہوتا ہے تو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ 1/2 ضرب قائمہ زاویہ بنانے والے ضلعوں کا حاصل ضرب۔ تو قائمہ زاویہ بنانے والے ضلع کون ہوتے ہیں؟ اے بی اور بی سی، یہ دو ضلع ہیں، ان دونوں کا حاصل ضرب۔ تو ایسا بھی لکھ سکتے ہیں قائمہ زاویہ بنانے والے ضلعوں کا حاصل ضرب، یا ان ورڈز میں بھی لکھ سکتے ہیں اس طرح سے کہ قائمہ زاویہ بنانے والے ضلعوں کا حاصل ضرب، ہے نا؟ حاصل ضرب ایسے بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھا 3 اشکال کے جو فارمولے ہیں جو ہم نے 7ویں کلاس میں بھی جو سیکھے ہیں۔ یہاں اس سبق کو جو ہے پڑھنے سے پہلے ہم کو اعادہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس سبق میں جو ہے نا رقبہ ہی ہمیں معلوم کرنا ہے، اور امید ہے کہ اگر آپ یہ تمام چیزیں، یہ تمام باتیں اگر جانتے ہیں تو آپ جو ہے آپ کی درسی کتاب کے اندر جو سب سے پہلی مشق ہے وہ آپ ایزیلی حل کر سکیں گے۔ لیکن اس کو حل کرنے سے پہلے ہم آپ کو ایک اور ایکٹیویٹی کروانا چاہتے ہیں، ہے نا؟ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے 4 ضلع والی شکل متوازی الاضلاع کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا، ہے نا؟ متوازی الاضلاع، متوازی الاضلاع، تو متوازی الاضلاع کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ اچھا مان لیجئے ابھی ہم نے آپ کے سامنے جو شکل بنائی ہے یہ ایک 4 ضلع شکل جس کا نام ہم نے متوازی الاضلاع اے بی سی ڈی دیا ہے، یہ آپ جو ہے یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔
चार ज़ेल वाली शक्ल, हमने इसके बारे में मुकम्मल मालूमात जो है अपने बेसिक वीडियो में बनाया है, आपने पिछले असबाक में भी जो है पढ़े होंगे, हमने वीडियो बना कर दिया है आपको। तो आप यहाँ देखें मुतवाज़िल अज़ला का जो रकबा है कैसे मालूम किया जाता है, आइए देखिए। तो सबसे पहले एक छोटी सी एक्टिविटी यहाँ पर हम करेंगे। इस तरह से अगर आप एक कार्ड बोर्ड पर या एक पेज पर, एक कागज़ पर अगर आप इस तरह से एक शक्ल बना लेते हैं ABCD मुतवाज़िल अज़ला, जिसके मुकाबिल के ज़िले मुतवाज़ी होते हैं, मुतमासिल होते हैं, इस तरह से अगर हम बना लेते हैं और उसके अंदर नुक्ता A से इस तरह से एक उमूद इस तरह से बनाते हैं, जिसका नाम हम यहाँ E देते हैं, है ना। तो इस तरह से एक उमूद बनाते हैं तो एक कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस AEB बनता है ना। तो ये AEB को अगर हम उठाकर यहाँ से जो है इस तरह से कट करके यहाँ से, यानी AE जो हिस्सा है इसको कट करके यहाँ मिला लेते हैं, कहाँ पर, इस तरह से, इधर पे, इधर अगर लगा लेंगे इस तरह से, है ना, तो ये एक मुस्ततिल बन जाएगा, है ना, AED, है ना, इस तरह से जो है ये एक मुस्ततिल बन जाएगा। तो इससे ये बात हमको समझ में आती है कि मुस्ततिल का जो रकबा होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई, है ना, बिल्कुल वो बराबर होगा मुतवाज़िल अज़ला के रकबे के लिहाज से, है ना। तो यहाँ पर मुतवाज़िल अज़ला का जो रकबा होगा कुछ इस तरह से होगा कि उसके कायदे की लंबाई, कायदा ज़रब उसकी ऊंचाई, ज़रब उसकी ऊंचाई, वो क्या हो जाएगी, मुतवाज़िल अज़ला का रकबा कहलाएगी, मुतवाज़िल अज़ला का रकबा कहलाएगी। तो इससे हम ये अखज़ कर सकते हैं, ये बात कह सकते हैं कि मुतवाज़िल अज़ला का जो रकबा है वो मुस्ततिल के रकबे के मसावी होता है। तो ये आपको ज़हन नशीन रखना है, क्योंकि इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमको मश्की सेट 5.1 हल करनी होगी। तो यहाँ पर महज 3 सवाल ही जो है मुझे नज़र आ रहे हैं, है ना, और यही 3 सवाल जो है हम हल करेंगे इस वीडियो में। तो मश्की सेट 15.1 यानी 15.1 का एक ख़ास वीडियो हम आपको देने जा रहे हैं। इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड लगातार आप देखते रहिए, क्योंकि हम आपको 3 सवाल यहाँ हल करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, सवाल नंबर 1 का अब आपके सामने ये रहा। यहाँ पर पहला सवाल हम पढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि एक मुतवाज़िल अज़ला का जो कायदा है वो 18 सम का है और ऊंचाई जो है वो कितनी, 11 सम की है ना। तो मुतवाज़िल अज़ला का जो है रकबा हमको मालूम करना है। अभी हमने देखा मुतवाज़िल अज़ला का रकबे का फॉर्मूला क्या है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे मुतवाज़िल अज़ला का रकबा जो हमको दिया गया है सवाल में, उनको बस ज़रब कर देना है ना। तो कायदे की लंबाई ज़रब उसके जो है इर्तिफ़ा है या ऊंचाई है ना, ऊंचाई या इर्तिफ़ा जो भी आप बोलेंगे, तो यहाँ पर ऊंचाई लिखेंगे तो भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो कायदा है 18 सम का और ऊंचाई है 11 सम की, तो ज़रब कर दीजिए। तो 11 8 88 हो जाएगा, 88 के 8 हासिल के 8, 11 का 11, 11 और 8 19, तो ये 198। अब देखियो जब हम रकबा मालूम कर रहे हैं तो यहाँ इकाई लगाना बहुत ज़रूरी है, और तमाम अज़लों की जो लंबाई है वो सम में दी गई है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे मुरब्बा सम। क्या लिखेंगे, मुरब्बा सम। मान लीजिए अगर यहाँ पर मुतवाज़िल अज़ला की जो लंबाई है मीटर में अगर दी होती है ना, और हम रकबा मालूम कर रहे होते तो हम मुरब्बा मीटर यहाँ पर इसकी इकाई लिखते थे, है ना। तो ये आपको ज़हन नशीन रखना है बच्चों, है ना, ये आपको ज़हन नशीन रखना है। तो यहाँ पर सवाल नंबर 1 शुरू होते ही ख़त्म हो गया, कितना आसान, 2 लाइन का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अब सवाल नंबर 2 आपके सामने है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि मुतवाज़िल अज़ला का रकबा जो है आपको दिया गया है। अब आप देख सकते हैं रकबा जो है आपको ऑलरेडी दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला वही है हमारा, मुतवाज़िल अज़ला का रकबा, है ना। तो यहाँ में लिखेंगे मुतवाज़िल अज़ला का रकबा, ऐसा लिखेंगे, का रकबा बराबर क्या होता है, कायदा ज़रब ऊंचाई, कायदा ज़रब ऊंचाई या इर्तिफा, है ना, ऊंचाई हम इस तरह से लिखेंगे। तो हमको रकबा दिया गया है, क्या दिया, 29.6 ये दे दिया गया है। कायदा देखिए आप 8 सम दिया गया है, तो 8 सम रख देंगे। ऊंचाई हमको मालूम करने, देखो ऊंचाई मालूम करने बोला है, तो ऊंचाई एज इट इज़ हम यहाँ रखेंगे, है ना, तो ऊंचाई वही रहेगी। अब हम क्या करेंगे, हमेशा ज़रब की चीज़ तकसीम में आती है, तो देखो 8 यहाँ पे बराबर की इस जानिब आएगा तो तकसीम में आ जाएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से माइनस में लेके जाते हैं, जबकि ऐसे नहीं। आप देखिए यहाँ पर नंबर जो है उसके साथ में अलामत कौन सी है, ज़रब की अलामत है। तो जब कोई भी अदद ज़रब में होता है बराबर के एक जानिब, तो जब वो दूसरी जानिब जाता है तो तकसीम में जाएगा, है ना।
अब ऊंचाई मालूम करना है तो यहाँ रहने दीजिए उसको, ऊंचाई को, है ना। तो अब 8 के पहाड़े से अगर आप जो इसको तकसीम करते हैं 29.6 को, तो क्या आएगा, 8 एका 8, है ना, 8 तिया 24, 8 तिया 24 ले लेंगे, है ना। 8 चौक 32 ज़्यादा हो जाता है ना, तो 29 है ये अदद, तो 8 तिया 24 ले लेंगे। आपके पास जो है 5 बचते हैं, 56 बन गए समझ लीजिए, तो 8 सत्ते 56, और ये आशारिया इधर पे लग जाएगा। तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी 3.7, ऊंचाई आ जाएगी 3.7। अब सम में है ना यहाँ सब, तो इसलिए सम लगाएंगे आप। तो इकाई लगाना ना भूलिए, वरना आपके मार्क्स जो है कैंसिल हो सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों, सवाल नंबर 3 जो इस मश्क का आखिरी सवाल है, ये आपके सामने मौजूद है। मुतवाज़िल का रकबा दिया गया है हमको 83.2, 83.2 मुरब्बा सम दिया गया है, और ऊंचाई दी गई है हमको 6.4। तो कायदा हमको मालूम करने के लिए कहा गया है। फॉर्मूला आप जानते हैं, ज़ाब्ता जो है मुतवाज़िल अज़ला का आप जानते हैं, वही लिखेंगे आप, मुतवाज़िल अज़ला का रकबा, है ना। तो मुतवाज़िल का रकबा क्या है, कायदा, कायदा ज़रब ऊंचाई, ज़रब क्या लिखेंगे, ऊंचाई, इस तरह से लिखेंगे। तो मुतवज़्ज़िल का रकबा जो है वो 83.2 यहाँ लिखेंगे। कायदा आपको पता नहीं है, वो आपको मालूम करना है, आप ऐसे ही रहने देंगे। ऊंचाई आपको 6.4 दी गई है। मैंने अभी आपको बताया कि ज़रब की चीज़ हमेशा तकसीम में जाती है, तो इस तरह से 6.4 जो है यहाँ तकसीम में चला जाएगा 83.2 के, है ना। और यहाँ कायदा हमको मालूम करना, यही रहने देंगे। बहुत से बच्चे ना ये भी सोचते हैं कि भाई जो मालूम करने वाली चीज़ है क्या हमेशा यहाँ इस तरफ रखना है क्या, नहीं बेटा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कायदा बराबर 83.2 बटे 6.4, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब आप जो है आप इसको 832 समझे ऊपर वाले आदत को, और इससे नीचे वाले आदत को 64 समझिए, है ना। क्योंकि आशारिया वाले आदत को तकसीम करना आप लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, आप लोग हल नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और उसको समझिए कि ये 64 है। तो 8 अट्ठे 64, है ना, इस तरह से। और इधर पे लिखेंगे 8 एका 8। अब दो अदद लेना है आपको, 32, 8 के पढ़े 32 आता है ना, दो अदद लेना तो हम 0 लगा देते हैं, तो 8 चौके 32, इस तरह से हम लिख देंगे। तो हमारे पास क्या बन रहा है, 104 बटे 8। इसको और आप तकसीम करें, 8 एका 8, फिर 8 एका 8, दो बचे 24 बन गया, 8 तिया 24, तो कितना आया, 13 आ गया। तो कायदे की लंबाई कितनी आ गई, मुतवाज़िल अज़ला के 13 सम आ गई। कितनी आ गई, 13 सम आ गई। तो कितना सिंपल और आसान, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रहने की मदद से हम ऐसे छोटे छोटे सवालात हल कर सकते हैं, है ना। तो आपको जो है इस मश्क के अंदर महज 3 सवाल दिए गए हैं। आप क्या करिए, ये 3 सवाल हल करने के साथ साथ ये जो मिसालें आप इस वक्त देख रहे हैं इसको भी हल कीजिए, क्योंकि ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्तिहान में जो है आपके पूछी जा सकती है ना। और इसी तरीके के जो सवालात है आप मज़ीद अपने टीचर से जो है मांगिए और उनसे लीजिए, ताकि आपको जो है इस तरह का जो आप हल कर सकें, है ना। तो इसी तरह के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल खान्स अकेडमी को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम के बच्चों में जो है शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर चैनल के अबाउट सेक्शन में देखिए 8th क्लास का टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको यहाँ पर सिर्फ इल्म रियाजी ही नहीं, साइंस, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, मराठी और तमाम मज़ामीन के ताल्लुक़ से आपकी रहनुमाई की जाती है ना। तो इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम के बच्चों में शेयर करें। इसी तरह के वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो किया जाए या वीडियो बने तो सबसे पहले आपको इसका इल्म हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहे खान्स अकेडमी के साथ। शुक्रिया।